Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to study cellular respiration. Cellular respiration is the process by which cell break down carbon containing compounds stepwise and energy is released to perform various life activities. Cellular respiration may be subdivided into four stages. Number one, glycolysis. Number two, pyruvic acid oxidation. Number three, Krebs cycle or citric acid cycle. Number four, respiratory chain. Out of these four stages, glycolysis will take place in the cytosol, whereas pyruvic acid oxidation, Krebs cycle, and respiratory chain take place in the mitochondria. So first of all, today we will study glycolysis. Glycolysis is the breakdown of glucose up to the formation of two molecules of pyruvic acid. Glycolysis is the breakdown of glucose into two molecules of pyruvic acid. Glyco means sugar, lysis means splitting. Literally, the word glycolysis means splitting of sugar. Glycolysis can take place in the absence of oxygen as well as in the presence of oxygen. As we have already studied, that glycolysis is the first step of cellular respiration. It takes place in both aerobic condition as well as in anaerobic condition. In both, the end product of glucose breakdown is pyruvic acid. Glycolysis एरोबिक कंडीशन में हो या एनारोबिक कंडीशन में हो, इसकी प्रोडक्ट जो है वो पायरुविक एसिड ही होती है. लेकिन याद रखिएगा, दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. दिस प्रोसेस डज नॉट यूज ऑक्सीजन. This breakdown of glucose will take place in series of steps, and each step is catalyzed by specific enzyme. Where are these enzymes present? All the enzymes of glycolysis are found dissolved in the cytosol. In addition, glycolysis also require ATP, coenzyme NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ pyruvic acid. This process take place in the absence as well as in the presence of oxygen, but it does not require oxygen. The end product of glycolysis is pyruvic acid in both aerobic condition as well as in anaerobic condition. This breakdown of glucose into pyruvic acid will take place in a series of steps, and each step is controlled by a separate enzyme. And the enzymes of glycolysis are found to dissolve in the cytoplasm, in the cytosol. Apart from enzymes,
It also required ATP and coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide. Glycolysis can be divided into two phases: preparatory phase number 1 and number 2 oxidative phase. ग्लाइकोलिसिस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. Preparatory phase, this is the breakdown of glucose that require expenditure of energy. इसमें ATP इस्तेमाल होगी. Preparatory phase में ATP यूज होगी. जबकि in oxidative phase, high energy phosphate bonds are formed. Energy stored. ATP प्रोड्यूस होती. प्रेपरेटरी फेज में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी इस्तेमाल होगी, जबकि ऑक्सीडेटिव फेज में जिसमें ऑक्सीडेशन होगी, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड बनेगा, एनर्जी स्टोर होगी. सबसे पहले प्रेपरेटरी फेज. प्रेपरेटरी फेज का फर्स्ट रिएक्शन phosphorylation of glucose to glucose 6-phosphate. Phosphorylation means addition of phosphorus. In the first step of glycolysis, there is a transfer of phosphate group from ATP to glucose. As a result, molecule of glucose 6-phosphate is formed. पहले स्टेप में ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप लेकर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाता है. एक एंजाइम एटीपी से फॉस्फेट लेती है और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच कर देती है. यूं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन जाता है. ग्लूकोज रिएक्टिव हो गया. जब फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ अटैच हो गया तो ग्लूकोज रिएक्टिव हो गया. तो पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का कि ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट यूजिंग एटीपी. याद रखें, दिस स्टेप like all other steps will take place in the presence of a specific enzyme. हम एंजाइम के नाम याद नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं. तो फर्स्ट स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. इस स्टेप में होता क्या है? एन एंजाइम ट्रांसफर्ड phosphate group from the ATP to the carbon number 6 of the glucose. As a result, glucose become glucose 6-phosphate. Then, second step of the preparatory phase. Isomerization of glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate. Isomerization of glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate. An enzyme catalyzes the conversion of glucose 6-phosphate to its isomer fructose 6-phosphate. आसान सी बात. पहले स्टेप में जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate बना था, जिसमें एक एटीपी इस्तेमाल हुई, दूसरे स्टेप में एक और एंजाइम ने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को उसके आइसोमर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया. देन स्टेप 3 of the preparatory phase. Phosphorylation of fructose 6-phosphate into fructose 1,6 bisphosphate.
At this stage, another ATP molecule transfer a second phosphate group to fructose 6-phosphate. As a result, fructose 6-phosphate becomes fructose 1,6-bisphosphate. फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट था, जो 6 कार्बन कंपाउंड, इसकी कार्बन नंबर 6 के साथ फॉस्फेट ग्रुप था। फिर एक एंजाइम ने एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप लिया और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 1 के साथ भी अटैच कर दिया। यूं फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बन गया। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बन गया। तो यूं सेकंड एटीपी मॉलिक्यूल इज यूज। पहला एटीपी तब इस्तेमाल हुआ था जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना था, और सेकंड एटीपी यूज हुआ जब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बना। In the fourth step, splitting of 1,6-bisphosphate, जो पिछले रिएक्शन में फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate बना, is split into 2 molecules each containing 3 carbon atoms. Fructose 1,6-bisphosphate is split into 2 molecules of 3 carbon compound. 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। One is called 3-phosphoglyceraldehyde PGAL or glyceraldehyde 3-phosphate G3P. Same thing. PGAL phosphoglyceraldehyde या glyceraldehyde 3-phosphate, same thing. While the other is dihydroxyacetone 3-phosphate. आपको पता है ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन ये ट्रायोसिस हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं। फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate is split by an enzyme into 3-phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone 3-phosphate. जो 6 कार्बन फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate था, उसकी ब्रेकडाउन हो गई, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन गए। Interconversion of phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate DAP. Both these compounds which are formed in the above reaction, 3-phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate, are isomer to each other and they are interconvertible. एक एंजाइम उनको इंटरकन्वर्ट करती है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate से या 3-phosphoglyceraldehyde से डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बनता रहता है, और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट से 3-phosphoglyceraldehyde बन जाता है। ये इंटरकन्वर्जन होती रहती है सेल के अंदर। तो दीज आर द 5 रिएक्शंस ऑफ द प्रेपरेटरी फेज। हम प्रेपरेटरी फेज को देख सकते हैं। पहले स्टेप में ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था, is converted into glucose 6-phosphate. Molecule of ATP is used. यहां arrowhead towards ADP होना चाहिए क्योंकि ATP यूज हो रहा है। Then दूसरे स्टेप में glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. और तीसरे स्टेप में fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate. Another ATP molecule is used. और फिर fructose 1,6-bisphosphate
is split up into two molecules of 3 carbon compound, namely dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate, or both these compounds are interconvertible by another enzyme. This is preparatory phase. प्रेपरेटरी फेज के बाद ऑक्सीडेटिव फेज, पे ऑफ फेज। जो प्रेपरेटरी फेज थी उसमें 2 एटीपी यूज हुए, एनर्जी का कर्जा चढ़ा। अब वो कर्जा उतरेगा, पे ऑफ फेज, एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीडेटिव फेज का पहला रिएक्शन, oxidation of 3-phosphoglyceraldehyde. 3-phosphoglyceraldehyde undergo oxidation. 2 electrons or 2 hydrogen atoms are removed from the molecule of 3-phosphoglyceraldehyde. यूं 3-phosphoglyceraldehyde की ऑक्सीडेशन हो गई। 3-phosphoglyceraldehyde से 2 इलेक्ट्रॉन या 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे। 3-phosphoglyceraldehyde की ऑक्सीडेशन हो गई एंड दीज protons are transferred to molecule of NAD, which is then reduced to NADH. ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें phosphoglyceraldehyde की ऑक्सीडेशन हुई और NAD being reduced। और इस रिएक्शन के दौरान a second phosphate group is donated to molecule from the inorganic phosphate present in the cell। इस रिएक्शन के दौरान एक तो ऊपर ऑक्सीडेशन हुई ना, साथ ही साइटोप्लाज्म से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस्तेमाल हुआ और उसका फॉस्फेट ग्रुप यूज होता है। और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ फास्फोरस 1,3-bisphosphoglycerate इज प्रोड्यूस्ड। हम ये बात कह सकते हैं कि 3-phosphoglyceraldehyde undergo oxidation, 3-phosphoglyceraldehyde oxidized into 1,3-bisphosphoglycerate using inorganic phosphate from the cytoplasm. Here NAD reduced to NADH. This is very important step of the glycolysis. This is the single step. This is the sole reaction in the glycolysis where oxidation take place. ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ एक जगह पर ऑक्सीडेशन होती है। वो ऑक्सीडेशन होती है जब 3-phosphoglyceraldehyde is oxidized into 1,3-bisphosphoglycerate। इस रिएक्शन को मैं एक दफा फिर बता देता हूं। 3-phosphoglyceraldehyde undergo oxidation. During this oxidation, 2 electron or 2 hydrogen atoms are removed, which are taken up by NAD. 3-phosphoglyceraldehyde से 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिनको एब्जॉर्ब कर लिया NAD ने और NAD रिड्यूस हो गया इनटू NADH। एरो हेड टुवर्ड्स NADH होना चाहिए। Then at the same time इसी रिएक्शन में inorganic phosphate is also used और ओवरऑल रिएक्शन की प्रोडक्ट हो जाती है 1,3-bisphosphoglycerate। यानी जो असल में जो 3-phosphoglyceraldehyde था, जब उसकी ऑक्सीडेशन हुई तो ग्लिसरेट बन गया, फास्फोग्लिसरेट बन गया और फिर फास्फोग्लिसरेट में एक और फास्फोरस ऐड हो गए तो 1,3-bisphosphoglycerate बन गया।
इसकी कार्बन नंबर 1, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसकी कार्बन नंबर 1 के साथ भी फास्फेट ग्रुप है और कार्बन नंबर 3 के साथ भी फास्फेट ग्रुप है। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट की बात करो। This oxidation of phosphoglyceraldehyde is an energy yielding process. Thus, high energy phosphate bond is created in this molecule. जो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट का सेकंड फास्फेट ग्रुप ऐड हुआ है वो हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड बना है। याद रखें जो प्रेपरेटरी फेज के एंड पे हमने एक तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनाया था और दूसरा 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाया था। रिएक्शन आगे चलता है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से, लेकिन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाकर सेम रिएक्शन करवाता है। यूं एक रिएक्शन यानी 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड भी रिएक्शन करवा रहा होता है वही, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनकर वही रिएक्शन आगे चला रहा होता है। देन सेकंड स्टेप ऑफ प्रेपरेटरी फेज, conversion of 1,3 bisphosphoglycerate to 3 phosphoglycerate। जो पहले रिएक्शन में 1,3 bisphosphoglycerate बना था, the high energy phosphate group which was formed in the previous reaction, this high energy phosphate group is transferred to the molecule of adenosine diphosphate ADP, converting it into ATP. The end product of this reaction is 3 phosphoglycerate। देखिए 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था पहले रिएक्शन का, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की पोजीशन 1 पे जो फास्फेट ग्रुप था, it is added to ADP. As a result, ADP become ATP और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट खुद रह गया 3 फास्फोग्लिसरेट में। 1,3 bisphosphoglycerate is converted into 3 phosphoglycerate and molecule of ATP is produced. This is the first step where ATP is produced during the glycolysis. Then third step preparatory phase का 3 phosphoglycerate is changed into 2 phosphoglycerate। 3 phosphoglycerate और 2 phosphoglycerate में सिर्फ पोजीशन ऑफ फास्फोरिक एसिड का फर्क है। 3 phosphoglycerate में कार्बन जो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें जो फास्फेट ग्रुप था वो पोजीशन 3 पे था। 3 फास्फोग्लिसरेट का मतलब फास्फेट ग्रुप पोजीशन 3 पे, और 2 फास्फोग्लिसरेट में जो फास्फेट ग्रुप है वो पोजीशन 3 से पोजीशन 2 पे, कार्बन नंबर 2 पर आ गया। सिर्फ यही फर्क है, अदरवाइज ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लिसरेट है, और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरेट है, सिर्फ पोजीशन ऑफ फास्फेट ग्रुप का फर्क है। तो 3PG 3 phosphoglycerate is converted into 2 phosphoglycerate। Then fourth step, 2 phosphoglycerate is changed into phosphoenol pyruvate by removal of one molecule of water। 2 phosphoglycerate जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और यूं 2 फास्फोग्लिसरेट चेंज होकर फास्फोइनोल पायरुवेट बन गया। और आखिर में आखिरी स्टेप, कन्वर्टिंग फास्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट। फास्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है। Finally, in the final step, phosphoenol pyruvate gives up
its high energy phosphate to convert a second molecule of ADP to ATP. The product is the pyruvate C3H4O3. Phosphoenol pyruvate के पास जो हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप था, it is given to ADP. ADP is converted into ATP and the product of the reaction is pyruvate. यानी simply हम ये कह सकते हैं phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate. As a result, a molecule of ATP is produced. This is the second step where ATP is produced. तो प्रेपरेटरी फेज में दो जगह एटीपी इस्तेमाल हुआ, जबकि ऑक्सीडेटिव फेज में दो जगह पर एटीपी प्रोड्यूस हुआ। ओवरऑल समरी हम देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि ग्लूकोज प्रेपरेटरी फेज में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एटीपी इस्तेमाल हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एक और एटीपी इस्तेमाल हुआ। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट split up into 2 molecules of 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बन जाते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड बोथ दीज कंपाउंड्स आर इंटरकन्वर्टेबल। यहां तक प्रेपरेटरी फेज थी। 2 एटीपी यूज हुआ। आपको पता होना चाहिए किस स्टेप पे एटीपी यूज होता है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है एटीपी यूज होता है, और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है तो तब एटीपी यूज होता है। इससे आगे प्रेपरेट फेज, इसके आगे ऑक्सीडेटिव फेज है। जैसे मैंने बताया कि रिएक्शन यानी जो मेटाबॉलिक पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस है, वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आगे चलना है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन हुई। इस ऑक्सीडेशन के दौरान ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए। वो 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, वो NAD ने ले लिए और वो NADH बन गया। और इस रिएक्शन में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इस्तेमाल हुई। जो रिएक्शन की जो प्रोडक्ट थी वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट हो गई, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो प्रेपरेटरी फेज में बना, उससे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया उसकी ऑक्सीडेशन होकर। अब जो इस तरफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था, यह भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और वो भी ऑक्सीडाइज होकर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। यूं पैरेलली दोनों रिएक्शन चल रहे होते हैं। यानी जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से प्रेपरेटरी फेज में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से 2-3 कार्बन कंपाउंड बने थे, वो सेम रिएक्शन आगे चला रहे होते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डायरेक्ट चला रहा होता है, जबकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर वो आगे रिएक्शन चला रहा होता है। तो ऑक्सीडेटिव फेज का पहला रिएक्शन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ये ऑक्सीडेशन हुई। This is the only oxidation step which takes place in the glycolysis. 1,3 bis phosphoglycerate then changes into 3 phosphoglycerate. जो 1,3 bis phosphoglycerate की कार्बन नंबर 1 के साथ पास फॉस्फेट ग्रुप था, वो हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप था, वो ADP को दे दिया गया और जो ATP बन गया, और 1,3 bis phosphoglycerate चेंज होकर 3 phosphoglycerate बन गया। सेम रिएक्शन दूसरी तरफ भी हुआ कि 1,3 इधर भी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट चेंज होकर 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया और ATP बना। 3 फॉस्फोग्लिसरेट चेंज होकर 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। दोनों तरफ सेम रिएक्शन हुआ, सिर्फ पोजीशन ऑफ फास्फोरस चेंज हुई।
Then 2-phosphoglycerate remove a molecule of water and changes into phosphoenol pyruvate. दूसरी तरफ भी 2-phosphoglycerate changes into phosphoenol pyruvate. Then phosphoenol pyruvate ने अपना हाई एनर्जी फॉस्फेट एडीपी को दे दिया, जो एटीपी बन गया, और फास्फोइनोल पायरुवेट खुद रह गया पायरुवेट। और दूसरी तरफ भी फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन गया। यूं ऑक्सीडेटिव फेज में एक जगह पर ऑक्सीडेशन हुई जिसमें NADH प्रोड्यूस हुआ, और दो जगह पर एटीपी प्रोड्यूस हुई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 NADH प्रोड्यूस हुए, एक ग्लाइकोलिसिस में, एक ये वाला और एक ये वाला, और 4 ATP प्रोड्यूस हुए, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, 4 ATP प्रोड्यूस हुए। ATP यूज कितने हुए थे? 2। ATP प्रोड्यूस कितने हुए? 4। ओवरऑल अगर हम समरी देखें, एनर्जी बैलेंस देखें ग्लाइकोलिसिस का, याद रखें फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस की वो 2 पायरुविक एसिड है। एटीपी प्रोड्यूस हुए 4, एटीपी यूज हुए 2, नेट गेन ऑफ एटीपी 2 हुआ। व्हेन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड in the glycolysis to produce 2 pyruvic acid, net gain पे 2 ATP है। ATP produced 4, ATP used 2 जो preparatory phase में इस्तेमाल हुए, और net gain of ATP 2 हुआ। At the same time 2 NADH are also produced। ये जो 2 NADH बनेंगे इनका भी बैलेंस रखना है, इनका भी काउंट रखना है अपने पास, क्योंकि they will also produce more ATP, लेकिन यहां नहीं, इन द माइटोकॉन्ड्रिया आफ्टर रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 2 NADH यहां बने हैं, ये भी एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस नहीं करते, ये साइटोसोल में प्रोड्यूस नहीं करते। ये जो ग्लाइकोलिसिस वाला काम है ये साइटोप्लाज्म में हुआ। पायरुविक एसिड ने, जो पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस में बना है, ये बनकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां पायरुविक एसिड के साथ मजीद मेटाबॉलिज्म होगा। और जो NADH जहां बने हैं ग्लाइकोलिसिस में, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और वहां जाकर एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहां नहीं, यहां हम, अगर हमने ग्लाइकोलिसिस का एनर्जी बैलेंस पूछा हो तो हमने सिर्फ ये बताना है कि एटीपी प्रोड्यूस 4 हुए हैं, एटीपी यूज 2 हुए हैं, और नेट गेन ऑफ एटीपी जो है वो 2 है। दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। थैंक यू वेरी मच।